Hello everyone, welcome back to Monica Khurana's Academy, and today we are going to understand types of sentences in the form of structures, okay? To understand which sentence is to be called simple sentence, compound sentence, or you can say complex sentence. So without wasting any time, let's start. First, guys, this is simple sentence. Simple sentence has one finite verb and it may have double subject or double object. Okay, so let's make it clear. What is finite verb? बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन रहता है कि मैम फाइनाइट वर्ब क्लियरली समझ नहीं आता है कि व्हाट इज़ फाइनाइट, व्हाट इज़ नॉन फाइनाइट वर्ब. फाइनाइट वर्ब इज एग्जैक्टली विच गोज अकॉर्डिंग टू टेंसेज. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हम कवर करेंगे लेटर, उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो जिस भी सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट के साथ जो हेल्पिंग वर्ब टेंसेस के अकॉर्डिंग चलता है, दैट वर्ब इज नोन एज फाइनाइट वर्ब. Otherwise, non-finite verb does not have to take care of the subject and subject-verb concord. It does not have to consider if we talk about non-finite verb. So, simple sentences are those sentences which use one finite verb and one main subject. It is not compulsory that we should use one subject. It can have double subject, it can have double object. Right? Let us understand this example. I have written this example. Generally people understand this like if a sentence is small then it is simple sentence. If it is too big then we cannot say it is simple. Right? It is a myth, guys. Simple sentence can be long also, and it can have various things which seems like verb, but those are not finite verbs. Exactly, I'll be discussing that. They can be non-finite verb, but there is one clause only. That means one main subject and one main finite verb. So let's understand this. Gautam Buddha attained enlightenment through dedicated determination and unflinching perseverance, overcoming all kinds of temptations, practicing severe austerities, facing fierce criticism. Now if you look at this, you may think that it is a complex sentence because it is too long. No, complexity, compound or simple sentence does not have to take care or do not have to take care with the length of the sentence. Okay, लेंथ से हमें कोई लेना देना नहीं है. हमें ये देखना है कि एक सब्जेक्ट है, एक फाइनाइट वर्ब है, तो ये हमारा सिंपल सेंटेंस है. लाइक यहाँ पर बात हो रही है गौतम बुद्धा, तो ये हमारे सब्जेक्ट हो गए. इन्होंने जो अचीव किया है दैट इज अटेन्ड, तो ये हमारा मेन फाइनाइट वर्ब है कि गौतम बुद्धा ने अटेन किया. क्या अटेन किया? एनलाइटनमेंट. राइट, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया. अब ये आगे का सारा सेंटेंस जो बताया गया, अगर आप डेडिकेटेड को वर्ब समझोगे तो ये वर्ब नॉन फाइनाइट है, जो कि लेटर मैं कवर करूंगी. जेरेंट्स, पार्टिसिपल्स, इन सब में बहुत दिक्कत होती है. अनफ्लिंचिंग, परसेवरेंस, परसेवरेंस है तो उसको क्लियर कर रहा है ये एडजेक्टिव आपका कि किस तरह का परसेवरेंस था उनके अंदर. ओवरकमिंग, इट सीम्स लाइक वर्ब बट दिस इज पार्टिसिपल. एंड प्रैक्टिसिंग सिवियर ऑस्टेरिटीज, फेसिंग फियर्स क्रिटिसिज्म, इन सब चीज़ों को जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, दे आर नॉट फाइनाइट finite verbs. That is why this sentence can be an example of simple sentence, जो कि आपको ये क्लियर करता है कि simple sentence को ज़रूरी नहीं है कि वो short हो, it can be long too, but one finite verb must be there and one main subject should be there. So that is basically simple sentence. If I talk about compound sentences, it is also known as double sentence or coordinate clauses. What is difference between sentence and clause? Clause has basically one subject, one finite verb. Later phrases, clauses भी मैं आपके साथ कवर करूँगी, वो ज़्यादा आसान रहेगा उससे और भी सेंटेंसेस को समझना. तो अभी के अभी हाल फिलहाल क्या है कि आपको ये समझना है, कंपाउंड सेंटेंस को हम कोऑर्डिनेट क्लॉजेस भी बोलते हैं, डबल सेंटेंसेस भी बोलते हैं. जनरली इनका क्या है, दिस इज मेड अप ऑफ 2 और मोर क्लॉजेस. सो फ्रेजेस, जहाँ फ्रेजेस का कुछ मीनिंग नहीं होता, लाइक इन अ रूम, ठीक है, on something like that, whatever you can take an example.
सो जो भी आपका एक जैसे फॉर अ पर्पस लाइक प्रेपोजिशन से मैंने जोड़ दिया, हैविंग अ सरनेम यू नो, ऐसा कुछ बोल दिया, तो दीज आर फ्रेजेस जिनका एक कंप्लीट मीनिंग नहीं होता। लेकिन क्लॉजेस क्या होते हैं जिनका एक कंप्लीट मीनिंग होता है, एक शॉर्ट सेंटेंस के तौर पे हो सकते हैं, विच हैज़ इट्स ओन मीनिंग, प्लस क्लॉजेस हैव one subject and one finite verb. So you can say that a short sentence which has its own meaning, that is known as clause. Okay, वो different type के होते हैं, वो हम later उसको study करेंगे. So generally जो compound sentence है हमारा, ये दो या दो से ज़्यादा clauses को इकट्ठे करने से बनता है, and the conjunctions which join these two clauses, that is known as coordinating conjunctions. Okay बेटा, so कुछ examples मैंने लिए हैं, conjunctions आपको clear होंगी, नहीं होंगी तो later series में हम conjunctions लेकर भी आने वाले हैं, उसमें and, but, yet, so and so on. Basically जो दो sentences को join करेगा वो हमारा क्या होगा, वो हमारा compound sentences होगा। इनको double भी बोला जाता है। double कैसे, आप देखो, they played and won the match. If I write this sentence in two different sentences like they played, they won the match, दोनों के दोनों सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग कन्वे करते हैं और दोनों सेंटेंसेस को अलग से लिखा जा सकता है। यानी कि अभी जो क्लॉजेस फील हो रहे हैं आपको, वो एक सेंटेंसेस की तरह भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास सब्जेक्ट भी है और फाइनाइट वर्ब भी है इसमें भी, राइट। इन दोनों को ज्वाइन करके मैंने एक कंपाउंड सेंटेंस बनाया। इसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं कहा जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस, जिसमें हम कोऑर्डिनेट यानी कि दो डिफरेंट क्लॉजेस को मेकअप करने वाले कंजंक्शंस के थ्रू या उनको जोड़ने के थ्रू जो एक सेंटेंस में बनाने में हेल्प करे, वो हमारे कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं। और उन कंजंक्शंस को हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कहते हैं। इसीलिए इस टाइप के सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेट क्लॉजेस भी बोला जाता है, राइट। इसमें दोनों के दोनों जो क्लॉजेज हैं बेटा, ये दोनों ही मेन क्लॉजेज होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि एक सेंटेंस या एक क्लॉज दूसरे पे डिपेंड करेगा। सो दोनों ही हमारे मेन क्लॉजेज इसमें काउंट होते हैं, राइट। सो कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत शॉर्ट है। इसका यूसेज क्या है हमारी इंग्लिश की, हमारे इंग्लिश लिटरेचर में इसका यूसेज क्या है। आप 11th में हो, 12th में हो, 10th में हो, 9th में हो, किसी भी क्लास में हो, आप जब भी कुछ लिखते हैं तो आपके सेंटेंस जनरली वर्ड लिमिट को क्रॉस नहीं करने चाहिए। आपको वर्ड लिमिट अपनी मेंटेन करनी चाहिए। तो अगर हमें कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने आते हैं या कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाने आते हैं सिंपल सेंटेंसेस के, अभी भी देखो, दे प्लेड, दे वन द मैच, अलग अलग से लिखेंगे तो एक फुल स्टॉप हमने रिमूव किया, दे रिमूव किया, एंड से ज्वाइन करके एक ही सेंटेंस में उसको लिख दिया, तो एक उसका एक अलग इम्पैक्ट बनता है। तो इसीलिए कंपाउंड सेंटेंसेस का रोल है। इससे भी ज़्यादा बढ़िया रोल है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का। अगर आप उनको बना सकते हैं तो आप उसको कहीं ना कहीं अपनी वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस से बहुत ही अच्छी लैंग्वेज कन्वे कर सकते हो और बहुत ही अच्छे टाइम में अपना टाइम सेव करके और अपने स्पेस को सेव करके, यानी कि वर्ड लिमिट के अंदर अंदर अपनी बात कह सकते हो। तो सेंटेंसेस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। फिर आता है बेटा हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस विच इज़ नोन एज सबऑर्डिनेट क्लॉजेज ऑल्सो। लेटर वी विल कवर दैट ऑल्सो। मेड अप ऑफ मेन क्लॉज, जनरली जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये एक मेन क्लॉज होता है इसमें, और दूसरा जो होता है वो इसका सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होता है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आएगा या मेन क्लॉज आएगा, राइट। सो एक क्लॉज ऐसा होता है, यानी कि एक जो हमने पर्टिकुलर क्लॉज लिखा है जो अपना एक पूरा मीनिंग डिफाइन कर रहा है, वो रिजल्ट हो सकता है पहले वाले के एक्शन का या कॉज भी हो सकता है, राइट। तो ये जो भी हमारा एक क्लॉज डिपेंडेंट होगा, यानी कि जिसका अपना कोई मीनिंग कंप्लीटली स्टैंड नहीं करता होगा लिखने के टाइम में, जिसको एक पर्टिकुलर क्लॉज की ज़रूरत है अपनी बात पूरी कन्वे करने के लिए, वो हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, जिसको हम डिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, एंड जनरली इन दीज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज वी यूज सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दैट वी विल कवर लेटर इन द अंडर द टॉपिक ऑफ कंजंक्शंस। Right now I can give you example that if, when, whom, generally WH related जितनी हमारी conjunctions होती हैं, generally not everyone, not every conjunction. So if any sentence is joined with these kinds of conjunction,
दैट इज़ एन इंडिकेशन दैट वी आर यूजिंग कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज. एग्जाम्पल जैसा कि मैंने लिखा है, एज आई वॉज वॉकिंग डाउन द रोड आई हर्ड समवन कॉलिंग मी. इफ़ आई ब्रेक दीज टू सेंटेंसेज, एज आई वॉज वॉकिंग डाउन द रोड, तो बात इनकम्प्लीट रह जाएगी. हाँ, तो कहना क्या चाहते हो, क्या हुआ बाद में, अकेले नहीं लिख सकती इस सेंटेंस को. आई हर्ड समवन कॉलिंग मी कुछ सेंस कन्वे कर रहा है, बट आगे क्या हुआ, कब किसी को सुना आपने बात करते हुए. सो बेसिकली यहाँ पर जो आपका मेन क्लॉज होगा वो ये होगा कि आप आई हर्ड समवन कॉलिंग मी कह सकते हैं, और डिपेंडेंट क्या है, एज आई वॉज वॉकिंग डाउन. तो आप एक बात कह रहे हो कि हाँ, आई वॉज वॉकिंग डाउन द रोड, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई हर्ड समवन कॉलिंग मी. सो आज के जो इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने टॉपिक कवर किया है वो है सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा सेंटेंस की नॉलेज को समझने के लिए, अपनी वर्ड लिमिट को कंट्रोल करने के लिए, अपने टाइम को सेव करने के लिए. आज का जो मैंने असेसमेंट दिया है इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ आपको, वो सिर्फ और सिर्फ ये दिया है कि आप सेंटेंसेस को देखकर रिकग्नाइज कर सकें कि वो सिंपल सेंटेंस है या कंपाउंड सेंटेंस है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, या फिर उसमें एक आधा क्वेश्चन आपको ये मिल जाएगा कि क्रिएट कंपाउंड सेंटेंस, क्रिएट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. So it is very important to have good knowledge about simple, complex and compound sentences. Okay? So अगर मैं इसको ख़त्म करूँ तो clause आप जान रहे हो कि one subject one finite verb है. प्रिंसिपल और मेन क्लॉज किसे कहते हैं, विच कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, जो अपने आप लाइक अगर मैं यहाँ देखूँ आई हर्ड समवन कॉलिंग मी, तो ये एक सेंस कन्वे कर सकता है कि ये कंप्लीट मीनिंग रखता है. लेकिन अगर मैं यही सेंटेंस रोड तक लिख देती तो ये कंप्लीट सेंटेंस नहीं था. तो प्रिंसिपल क्लॉज इसमें क्या हुआ, लेटर वन, आई हर्ड समवन कॉलिंग मी. ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, राइट. लाइक अगर मैं ये कहूँ कि आई कांट से वेयर शी हैज़ गॉन, शी हैज़ गॉन कंप्लीट सेंस दे रहा है, तो आई कांट से किस बारे में नहीं, तो वो एक इनकम्प्लीट सेंस देता है. जो वेयर उसको कनेक्ट कर रहा है दोनों को बीच में. सो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, राइट. उसके अलावा बच्चे सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है, विच कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन, डिपेंड्स अपॉन अनदर क्लॉज टू मेक सेंस. जिसको एक ना एक क्लॉज ज़रूर चाहिए सेंस कंप्लीट करने के लिए. सेंटेंस आपको पता ही है, सेंटेंस में एक बेसिकली जो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था वो यही कि सेंटेंस का अपना एक मीनिंग होता है. वन क्लॉज और मोर देन टू क्लॉजेज भी उसमें हो सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. कंपाउंड सेंटेंसेस ये आपको पता ही चल गया, टू और मेन क्लॉजेज हैं हमारे, और कॉम्प्लेक्स मैंने आपको बता दिया. ध्यान रखने वाली बात ये है बेटा कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको स्प्लिट करें और उनके मीनिंग सारे निकल के आएँ. तो एक ना एक उसमें डिपेंडेंट क्लॉज आपको ज़रूर देखने में मिलेगा. साथ ही साथ इसको डबल सेंटेंस कहते हैं, तो कभी कभार इसका मतलब ये नहीं है कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स के बीच की कोई चीज़ नहीं हो सकती, हो सकती है. एक ऐसा सेंटेंस बन सकता है जिसमें आप अगर बनाने पर आओ तो दो क्लॉजेस बन सकते हैं, साथ में उसमें एक डिपेंडेंट वर्ब चल रहा होगा, तो आप उसको देख सकते हो. लेकिन इस तरह के सेंटेंसेस को हम मिक्स सेंटेंसेस बोलते हैं. ये जनरली हर किसी की आर्ट ऑफ राइटिंग होती है, इसको अलग से समझाया नहीं जाता. बेसिकली हम इसको 3 पार्ट में ही डिवाइड करते हैं. दैट इज़ योर आर्ट ऑफ राइटिंग, इफ़ यू कैन डेवलप दैट आर्ट ऑफ राइटिंग टू. ओके, सो आई होप आज का जो वीडियो है वो आपको सेंटेंसेस का इंफॉर्मेशन देने में बहुत सक्सेसफुल रहा होगा. हम लोग आपसे जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली ये चीज़ें आपके लिए यूज़फुल हैं या नहीं, और टेस्ट अटेम्प्ट करो, डिस्क्रिप्शन में है, और अपने मार्क्स अपने नेम के साथ वहाँ पर सबमिट करो. कमेंट बॉक्स में हमको अपने मार्क्स ज़रूर बताओ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस.